Class 4. Class 4. Today we are going to do the exercises of EVS chapter 16, the earth and the sky. तो क्लास 4 आज हम लोग EVS चैप्टर 16 का एक्सरसाइज करेंगे. द अर्थ एंड द स्काई. EVS चैप्टर 16 द अर्थ एंड द स्काई का एक्सरसाइज करेंगे. ओके, तो वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड and I have already explained you this complete chapter. Today we are going to do exercise A in the copy because it is question answer, exercise B in the book and exercise C in the book. Okay, एक्सरसाइज ए कॉपी में करेंगे हम लोग और एक्सरसाइज बी आरसी बुक में. तो मैं सबसे पहले बी करता हूं. बी रेडी? आप लोग रेडी रहिए. जैसा जैसा मैं लिखूं आप लोग लिखिएगा. द इनरमोस्ट लेयर. नाउ नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक. द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड. ठीक है, ये भी है, ये होगा इनर कोर है. An imaginary line that divides the earth into two equal halves is called equator. The earth has a dash temperature. The earth has a dash temperature, moderate temperature. Now, number 4, the earth takes dash days to complete one revolution. When the northern hemisphere is tilted towards the sun, it has dash. The northern hemisphere is tilted towards the sun. The northern hemisphere is tilted towards the sun. It has their season. Chalo, now I am writing now B. जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप लोग बुक में लिखते जाइए. Fill in the blanks I am doing. Now fill in the blanks. Number 1. The innermost layer of the earth is called core. Right, C-O-R-E, core. लिखो. ये देखो मैंने आंसर लिख दिया. आप लोग भी बुक में लिखिए. Write down in your book core, C-O-R-E, core. Then number 2, an imaginary line that divides the earth into two equal halves is called equator. E-Q-U-A-T-O-R, equator. Now number 3, fill in the blanks. Number 3, the earth has a dash temperature. Answer होगा moderate temperature. MODERATE. मॉडरेट का मतलब होता है ना ही ज्यादा ना ही कम. तो देखना अर्थ का टेम्परेचर ना ही बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, इसलिए इसे मॉडरेट कहते हैं. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 4, द अर्थ टेक्स डैश डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. अर्थ कितना दिन लगाता है एक रिवोल्यूशन में? एग्जैक्टली टेक 365 and quarter days. 365 उसके बाद 1/4 होगा. 365 days six hours. तो आंसर होगा 365 days 6 hours. The earth takes 365 days and 6 hours to 365 days and 6 hours days to complete one revolution. Actually 365 and 1/4 होना चाहिए, मगर वो किस तरह से लिखे नॉट अंडरस्टैंडेबल. रुक जाओ, मैं इरेज करके अच्छे से लिखता हूँ. वेट रुको. The answer number 4 है the earth takes 365 and quarter 1/4. हाँ, ये होगा. अंडरस्टूड? So the earth takes 365 1/4 days to complete one revolution. Up number 5, fill in the blank. Number 5,
When the northern hemisphere is tilted towards the sun, it has that season, it has summer season, क्योंकि वो सन के तरफ tilted है. Now write down, ये fill in the blanks मैंने कर दिया, लिख लो. Write down. If you are done, तो मैं true false में जाऊंगा. Please write down. I hope all of you have done. I hope all of you have done. Fill in the blank सभी का हो गया. Okay. I hope all of you have done. Now I'm moving to true false. अब मैं true false में जाता हूँ. I'm clearing this. Yes, now we will do true and false. अब हम लोग true and false करेंगे. Okay? जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ true false, आप भी बुक में लिखते जाइए. So true false question number 1 is, the revolution of the earth causes change of season. Yes, it is true. Revolution ही season लाता है. Okay? So it will be true. Number 1 will be true. Now number 2. The earth completes one rotation around its axis in 25 hours. It is totally false. It takes 24 hours, not 25. So it is false. Number 2 will be false. Now number 3. The region facing the sun. The region facing the sun receive the direct rays of the sun. The region facing the sun receive the direct rays of the sun. Yes, very true. जो अर्थ का हिस्सा सूरज को फेस करता है वो डायरेक्ट सनरेज पाता है. तो दैट इज ट्रू. ट्रू. Now the outermost layer of the earth is called the mantle. It is false. The outermost layer is called the crust, not the mantle. So it is false. FALSE false होगा ये. चलो, तो मैंने ट्रू फॉल्स भी कर दिया. 1 होगा ट्रू, 2 होगा फॉल्स, 3 होगा ट्रू, 4 होगा फॉल्स. ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. डन. प्लीज कर लो. उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में जाएंगे. नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स. मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करा दिया और ये ट्रू फॉल्स भी करा दिया. नाउ वी विल गो टू ट्रू एंड फॉल्स. Done. True, false, done. Now I am removing this. Yes, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स में. यानी कि मैंने कहा था एक्सरसाइज बी एंड सी बुक में होगा, तो एक्सरसाइज बी एंड सी बुक में कर लिया आप लोगों ने. अब एक्सरसाइज ए जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे कॉपी में. तो प्लीज टेक आउट योर ईवीएस कॉपी. आप सभी ईवीएस कॉपी निकालिए और वहां हेडिंग लिखिए चैप्टर 16. राइट द हेडिंग चैप्टर 16 द अर्थ एंड द स्काई. ये वाला हेडिंग लिखो. राइट डाउन दिस हेडिंग. राइट डाउन ओवर देयर चैप्टर 16 एंड हेडिंग लिखिए ये वाला जो मैं स्क्वायर बॉक्स रेड से स्क्वायर बॉक्स कर रहा हूं, द अर्थ एंड द स्काई.
राइट डाउन द हेडिंग। और ये हेडिंग लिख लेने के बाद हेडिंग लिख लेने के बाद राइट ए answer these questions. Okay, A, answer these questions. And you have to copy the questions also. डायरेक्ट आंसर मत लिखो, अगर डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो तुम समझ नहीं पाओगे क्या लिख रहे हो। तो व्हाट आर द फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, हेडिंग लिखो ए आंसर दिस क्वेश्चंस। उसके बाद लिखो क्वेश्चन 1, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। लिख लिया? चलो अब मैं तुम लोगों को आंसर लिखवा रहा हूं। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विथ योर कॉपीज। नाउ आई एम मेकिंग यू राइट आंसर्स। आई होप आप लोगों ने यही लिखा होगा हेडिंग ए आंसर दीज क्वेश्चंस। बस अब मैं आंसर लिखवाने जा रहा हूं। नाउ आप लोग भी लिखिए, कॉपी में क्वेश्चन उतारिए। पहला क्वेश्चन उतारिए, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन उतार दिया आप लोगों ने, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन 1 सबने उतार लिया। क्वेश्चन 1 व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। नाउ आई एम गिविंग द आंसर। आंसर 1 लिख लो, लिखते जाओ। लिखते जाओ जो मैं लिख रहा हूं। आंसर 1 the 3 layers of the earth are crust, mantle and core। चलो ये हो गया आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो कॉपी में। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। लिखो व्हाट आर द 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन कॉपी करो अपने कॉपी में, ईवीएस कॉपी में लिख लो। व्हाट आर द 2 मेन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। लिख लिया? अब मैं आंसर 2 दे रहा हूं। पहले क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर द 2 मेन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन डन। जिसने भी क्वेश्चन 2 लिख लिया है, अब मैं क्वेश्चन 2 का आंसर दे रहा हूं। लिखो आंसर 2, the 2 main movements of the earth are rotation and हो गया आंसर नंबर 2 डन। The 2 main movements of the earth are rotation and revolution। Done।
क्वेश्चन 2 हो जाने के बाद आंसर 2 लिखो, जो मैंने लिखा है स्क्रीन में जो नजर आ रहा है। डन। जिसका भी आंसर नंबर 2 हो गया है, क्वेश्चन 3 लिखना चालू करो कॉपी में। कॉपी क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिक्स path that the earth takes to move around the sun? What is the name of the fixed path that the earth takes to move around the sun? ये क्वेश्चन कॉपी करो, लिखो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, जिसका भी आंसर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 उतारो कॉपी में। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। What is the name of the fixed path that the earth takes to move around the sun? Now I am giving, जिसका भी क्वेश्चन नंबर 3 उतार लिया जिसने भी, अब वो आंसर लिखो। आंसर नंबर 3 जो मैं दे रहा हूं, आंसर नंबर 3 इज the fixed path that the earth takes to move around the sun is called orbit. ये हो गया आंसर नंबर 3। जिसने भी क्वेश्चन 3 उतार लिया है, ये आंसर लिखो। आंसर 3, the fixed path that the earth takes to move around the sun is called orbit. Done. उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन उतारो, क्वेश्चन 4, व्हाट इज रोटेशन? जिसका भी आंसर 3 हो गया है, क्वेश्चन 4 उतारो, व्हाट इज रोटेशन? जिसका भी क्वेश्चन 4 हो गया है, मैं आंसर दे रहा हूं। आंसर 4, जिसने भी क्वेश्चन 4 उतार लिया है, आंसर 4 लिखो जो मैंने दिया है यहाँ। राइट डाउन आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका हो गया है, आंसर 4 लिखो। द डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ on its own axis around the sun in 24 hours causing day and night is called rotation. ये है आंसर नंबर 4। तो आई होप सबने क्वेश्चन आंसर उतार लिया।
तो आज मैंने सारा एक्सरसाइज खत्म कर दिया. ओके, ऑफ चैप्टर 16. एक्सरसाइज A, B and C. A, fill in the blanks. B, true false and C, question answer. A, क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना था और B and C, fill in the blanks and true false बुक में करना था. ओके, आज जिसका सब हो चुका है वो फोटो क्लिक करके PDF बनाओ और उसके बाद मुझे चेकिंग के लिए भेजो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन. I hope all of you have done. Now I am ending my class. और जिसने भी मिस आउट कर दिया होगा वो मैं भेज दूंगा तुम लोगों के व्हाट्सएप पे. I hope all of you have done. Now I am ending my class.